Praise the Lord, grace and peace be upon all of you, dear family. We welcome you to hosting the Ark Day 46. Today we continue with the serious event of Uzzah's death. As the Ark was being brought toward Jerusalem, Bible says that the anger of the Lord was aroused against Uzzah and God struck him because of his error. This reminds us of a fundamental truth that God is loving but God is also holy. His presence cannot be treated casually and His word cannot be changed according to our convenience. प्रिय परिवार, हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को अनुग्रह शांति। आज होस्टिंग द आर्क डे 46 में हम उज्जा की मृत्यु की इस गंभीर घटना को आगे समझेंगे। जब संदूक को यरूशलेम ले जाया जा रहा था तो दूसरा शमूएल में लिखा है कि उज्जा के अपराध के कारण यहोवा का क्रोध उस पर भड़का और परमेश्वर ने उसे वहीं मार दिया। ये हमें एक महत्वपूर्ण सत्य याद दिलाता है। परमेश्वर प्रेमी है लेकिन वो पवित्र भी है। उसकी उपस्थिति को कभी भी हल्के में नहीं लिया जा सकता और उसकी व्यवस्था को अपनी सुविधा के अनुसार बदल नहीं जा सकता। The problem was deeper than Uzzah simply touching the ark. Israel was carrying the ark on a cart rather than according to the God's prescribed order in Exodus 25 instructed that the poles were to remain in the rings of the ark so that it could be carried later. 1 Chronicles 15:15 says, Levites carried the ark on their shoulders by the poles. David learned from the failure and the ark had not changed. God's holiness had not changed. The order had to change. समस्या केवल ये नहीं थी कि उज्जा ने संदूक को छू लिया। उज्जा संदूक को गाड़ी पर ले जा रहा था जबकि परमेश्वर ने उसके लिए एक निर्धारित व्यवस्था दी थी। निर्गमन 25 कहती है कि संदूक को उठाने के लिए डंडे उसके कड़ों में लगे रहने चाहिए। बाद में पहला इतिहास 15:15 बताता है कि लेवी संदूक को उसकी डंडों के द्वारा अपने कंधों पर उठा के ले गए। दाऊद ने अपनी गलती से सीखा। संदूक नहीं बदला था, परमेश्वर की पवित्रता नहीं बदली थी, व्यवस्था के अनुसार चलने का तरीका बदलना था। This brings us to the difference between presumption and obedience. Presumption says, I know what God wants. Obedience says, Lord, show me your ways. Presumption says, my intention is good enough. Obedience says, my intention must come under God's word. So God is not merely asking us to carry something sacred. He is asking us to carry it according to His order. ये हमें अनुमान और आज्ञाकारिता के बीच का अंतर समझाता है। अनुमान कहता है मैं जानता हूँ कि परमेश्वर क्या चाहता है। आज्ञाकारिता कहती है प्रभु मुझे अपना मार्ग दिखाइए। अनुमान कहता है मेरी नीयत अच्छी है, इतना ही काफी है। लेकिन आज्ञाकारिता कहती है मेरी नीयत भी परमेश्वर के वचन के अधीन होनी चाहिए। परमेश्वर केवल ये नहीं चाहता कि हम किसी पवित्र वस्तु को उठाएं, वो चाहता है कि हम उसे उसकी अवस्था के अनुसार उठाएं। After Uzzah died, David became afraid. 2 Samuel 6:9 says, How can the ark of the Lord come to me? The ark was then taken into the house of Obed-Edom. It remained there for 3 months and the Lord blessed Obed-Edom and his entire household. What a powerful contrast. The same presence that confronted presumption brought blessings where it was honored. उज्जा की मृत्यु के बाद दाऊद डर गया। दूसरा शमूएल 6:9 में वो कहता है यहोवा का संदूक मेरे पास कैसे आ सकता है। इसके बाद संदूक को ओबेद-एदोम के घर में ले जाया गया। वो 3 महीने तक वहां रहा और यहोवा ने ओबेद-एदोम तथा उसके पूरे घराने को आशीष दी। ये कितना सामर्थ्य विरोधाभास है। जिस उपस्थिति ने अनुमान और आज्ञाकारिता को सामना किया, उसी उपस्थिति ने उस घर में आशीष लाई जहां उसका आदर किया गया। So the prophetic lesson for us is simple. God's presence is not possession, it is a responsibility. Don't only ask, can God use me, but ask, can I faithfully carry what God entrusted to me? Don't just ask for greater influence, ask for greater character. Don't only seek His presence, learn to honor His presence. इसलिए आज हमारे लिए संदेश बहुत स्पष्ट है। परमेश्वर की उपस्थिति कोई संपत्ति नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी है। केवल ये ना पूछे क्या परमेश्वर मेरा उपयोग कर सकता है, बल्कि पूछे जो परमेश्वर मुझे सौंपता है क्या मैं उसे विश्वास योग्यता से उठा सकता हूँ। केवल अधिक प्रभाव की इच्छा ना करें, अधिक चरित्र की इच्छा करें। केवल उसकी उपस्थिति को ना खोजें, उसकी उपस्थिति का आदर करना सीखें। The journey did not end with Uzzah. The interruption prepared the way for the next stage.
the house of Obed-Edom and eventually Jerusalem may become people who carry God's presence with holiness, humanity, reverence and obedience. उज्जा की मृत्यु के साथ यात्रा समाप्त नहीं हुई। वो रुकावट अगले चरण की तैयारी थी, ओबेद एदोम के घर और अंततः यरूशलेम की ओर। आइए हम ऐसे लोग बने जो परमेश्वर की उपस्थिति को पवित्रता, नम्रता, आदर और आज्ञाकारिता के साथ लेकर चले। Grace and peace be upon all of you. परमेश्वर आप सभी को आशीष शांति दे।